Good morning, dear students. The next topic of our chapter number 5, acid, bases and salts, is neutralization reaction. What is neutralization? Basically, if we have any acidic medium, then we will add some base into that medium to neutralize it. Or if we have basic medium, then we add some acid to neutralize it. That means the reaction in which acid reacts with a base to form salt and water is called neutralization reaction. That means एक ऐसी reaction जिसमें acid और base आपस में react करके salt and water produce करते हैं, उसे हम neutralization reaction कहते हैं. Okay, some heat is always evolved in neutralization reaction. That means इस रिएक्शन में हमेशा कुछ हीट प्रोड्यूस होती है, कुछ हीट रिलीज होती है. ठीक है. इन जनरल वे वी कैन रिप्रेजेंट इट एज एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर प्लस हीट. ओके. नाउ इफ वी टेक एन एग्जाम्पल, here it is written as HCl plus NaOH, hydrochloric acid plus sodium hydroxide gives us NaCl, sodium chloride plus H2O, that is water. Okay, ये हमारे पास एसिड है, ये हमारे पास बेस है, और इन दोनों के रिएक्शन से जो सॉल्ट बना वो क्या है? NaCl, सोडियम क्लोराइड, और साथ में क्या हुआ? वाटर प्रोड्यूस हुआ, और साथ में हीट भी प्रोड्यूस होगी. इज इट ओके? Here we are using this term salt. Okay, it doesn't mean that common salt which we are using in our food. Okay, the salt term is used for the compound which is made by acid and base reaction. Is it okay? It is used as a general term here. Now an activity is given in your book. Let's discuss that activity. For the activity, the needed things are dilute NaOH, that means sodium hydroxide, dilute HCl, that means hydrochloric acid, phenolphthalein indicator, dropper and a test tube. Okay, we know that phenolphthalein indicator turns pink in the basic medium and remains colorless in the acidic medium. Now in a test tube, take 5 ml of dilute NaOH. Okay, that means dilute sodium hydroxide. Okay, and add 2 drops of phenolphthalein indicator. Now what will happen when we add phenolphthalein indicator in the basic medium? It will turn pink. Okay, so in this test tube, which color is occurred? The pink color. Okay, now in the second step, what will we do? We will add dilute HCl using a dropper, drop by drop. Add dilute HCl drop by drop in this test tube. Okay, and stir it gently and regularly. Okay, what will happen? You will see that pink color will disappear. Okay, now in the third step, after disappearing this pink color, we will add a single drop of dilute NaOH again. What will we see? That pink color again appears in the test tube. Okay, basically what is happening here, जब आपने इस टेस्ट ट्यूब में 5 ml NaOH लिया, dilute NaOH, और इसको phenolphthalein इंडिकेटर के साथ मिक्स किया, तो इसका कलर कैसा हो गया? पिंक कलर. ठीक है. अब एसिडिक मीडियम जब आपने इसमें मिलाना चाहा, तो आप क्या कर रहे हो? ड्रॉप बाय ड्रॉप, सिंगल ड्रॉप करके डाइल्यूट HCl इसके अंदर मिक्स कर रहे हो और टेस्ट ट्यूब को इस तरीके से मूव कर रहे हो, स्टिर कर रहे हो. ठीक है. उससे क्या होगा? ये जो मीडियम है जो अभी तक बेसिक था वो न्यूट्रलाइज होने लग जाएगा. न्यूट्रलाइज क्यों होगा? क्योंकि हम बेस के अंदर एसिड को मिक्स कर रहे हैं.
ठीक है, धीरे धीरे करके वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, यानी उसका जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ है वो डिसअपियर हो जाएगी। तो जैसे जैसे बेसिक प्रॉपर्टीज़ डिसअपियर होने लगेगी वैसे वैसे पिंक कलर भी डिसअपियर होने लगेगा। और अगर आप एक्स्ट्राज में HCl और डाल देते हो, 2 या 3 ड्रॉप्स और HCl की डाल देते हो, तो ये मीडियम कैसा हो जाएगा, एसिडिक। अब हमें पता है कि फिनोल्फ्थालीन इंडिकेटर जो होता है एसिडिक मीडियम में कलरलेस रहता है, इसलिए इस ड्रॉपर का कलर कैसा हो गया, कलरलेस। ठीक है, नाउ अगेन वी आर एडिंग अ ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट NaOH। वापस से हम क्या कर रहे हैं, NaOH की एक सिंगल ड्रॉप डाल रहे हैं। ठीक है, इन केस अगर ये न्यूट्रलाइज्ड मीडियम है, इसमें आपने एक्स्ट्रा HCl ऐड नहीं किया हुआ है, तो क्या होगा, तब NaOH की 1 और 2 ड्रॉप डालते ही ये मीडियम कैसा हो जाएगा, बेसिक। ठीक है, और बेसिक मीडियम में फिर से फिनोल्फ्थालीन इंडिकेटर कौन सा कलर देगा, पिंक कलर। तो अगेन पिंक कलर appears. Is it okay? So we can show it here. Here 5 ml dilute NaOH. We are adding phenolphthalein here, so the color appears pink. Okay. Now we are adding dilute HCl, and the color of the solution becomes colorless. Okay. Now when we add dilute NaOH again, the color becomes pink. Now we will talk about the properties of salts. Okay. Salts exist in solid state. Generally ये solid state में मिलते हैं। ठीक है, second one is they have high melting and boiling point. आपको पता है melting point क्या होता है, boiling point क्या होता है। ठीक है, they have high melting and boiling points, that means salts easily melt भी नहीं होते हैं और easily boil भी नहीं होते हैं। Okay, now the next one is most of salts are soluble in water, यानी पानी में easily घुल जाते हैं। सभी salts नहीं घुलते हैं, कुछ घुल जाते हैं। ठीक है, salt solutions are good conductor of electricity. ठीक है, minded salt solutions, यानी जब आप इनको पानी में घोल दोगे जो solution बनेगा वो solution इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ। मीन्स हमारी रूटीन लाइफ में क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं न्यूट्रलाइजेशन के। लेट्स सी, द फर्स्ट वन इज इंडाइजेशन। ओके, व्हाट इज इंडाइजेशन? इफ सम टाइम वी ईट so much of spicy food, then what happens, stomach produces a large amount of hydrochloric acid. Okay, how does it impact? It results acidity in stomach. Okay, and this acidity will cause ulcer also. It can damage the walls of the stomach. So what is the cure of indigestion? Here the medium of the food in our stomach becomes acidic, so to cure the indigestion we have to take some basic medium. Okay, so we will take weak bases, not the strong one. We will take weak bases that are called antacids. Okay, that are called antacids. Okay, what are the example of it? Milk of magnesia. Milk of magnesia हम किसे कहते हैं? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये एक वीक बेस होता है। ठीक है, इस वीक बेस को हम क्या बोलते हैं? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इज इट क्लियर? सो द नेक्स्ट टॉपिक इज सॉइल ट्रीटमेंट। द एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स मेक सॉइल एसिडिक। ओके, सो टू न्यूट्रलाइज इट इज ट्रीटेड विद bases such as quicklime, that means calcium oxide, or slaked lime, that means calcium hydroxide, to make soil neutral. As we know that plant grows in neutral soil. Okay, that's why we neutralize the acidic medium of soil by adding some bases. Okay, that means जो फर्टिलाइजर्स का अगर हम एक्सेसिव यूज़ करते हैं तो वो क्या करते हैं? सॉइल को एसिडिक बना देते हैं। ठीक है, अब प्लांट्स को ग्रो करने के लिए, अच्छी पैदावार के लिए हमें क्या चाहिए होता है कि सॉइल जो है वो न्यूट्रलाइज रहे, ना तो एसिडिक मीडियम रहे उसका, ना ही बेसिक रहे। ठीक है, तो इस एसिडिक सॉइल को हम
कैसे ट्रीट करते हैं, उसमें कुछ बेस मिला देते हैं, ठीक है। कौन सा, या तो क्विकलाइन दैट मीन्स कैल्शियम ऑक्साइड, या फिर स्लेक्ड लाइन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इनका यूज करके हम सॉइल को न्यूट्रलाइज कर लेते हैं, ठीक है। एंड इन द अपोजिट केस व्हेन द सॉइल इज बेसिक, then what will we do? We will use decaying organic matter, that means manure. By adding manure or compost in the soil, we can treat the basic medium of a soil. Is it clear? Decaying organic matter यानी manure या compost को यूज करके जो सॉइल का बेसिक मीडियम है उसे ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि जब ये कंपोस्ट डिके होता है तो ये क्या करता है, एसिड रिलीज करता है। जब ये एसिड रिलीज करेगा तो सॉइल का जो बेसिक मीडियम होगा वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। इज इट ओके? नाउ द थर्ड वन इज ants or bees sting. Okay, if an ant or a bee sting a person, then what will happen? It inject formic acid into the skin. Okay, जब एक आंट या बी बाइट कर लेती है किसी पर्सन को, ठीक है, तो वो क्या करती है, फॉर्मिक एसिड को अपने स्किन के अंदर इंजेक्ट कर देती है, ठीक है। इस फॉर्मिक एसिड के कारण क्या होता है, किसी भी पर्सन को या अफेक्टेड पर्सन जो है उसको स्वेलिंग हो सकती है, बर्निंग हो सकती है, ठीक है। तब इसको ट्रीट करने के लिए क्या होगा, यहाँ क्या है, एसिड है, तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें फिर से किसकी हेल्प लेनी होगी, बेस की। तो बाय रबिंग अ माइल्ड बेस, फॉर एग्जाम्पल बेकिंग सोडा दैट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और बाय यूजिंग कैलामाइन सोल्यूशन दैट इज जिंक कार्बोनेट, वी कैन गिव रिलीफ टू द पर्सन, ठीक है। अगर हम इस माइल्ड बेस को, बेकिंग सोडा को या कैलामाइन सोल्यूशन को उस जगह पर अफेक्टेड एरिया पर रब करेंगे तो उस पर्सन को रिलीफ मिलेगा। इज इट क्लियर? नाउ द लास्ट एग्जांपल इज फैक्ट्री वेस्ट। ओके, बेसिकली फैक्ट्री वेस्ट कंटेन्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ एसिड्स, इन फैक्ट हार्मफुल एसिड्स। ओके, the direct discharge of untreated factory waste into the water bodies may kill fishes and other aquatic organisms. What does it mean? फैक्ट्री वेस्ट जो है उनके अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में एसिड होता है, दैट इज़ वेरी मच हार्मफुल फॉर अस, फॉर एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो अगर हम उसे बिना ट्रीट किए डायरेक्ट वाटर बॉडीज़ में डिस्चार्ज कर देते हैं तो उन वाटर बॉडीज़ में जो भी लाइफ है, एक्वाटिक लाइफ है, वो सारी अफेक्ट होगी और मे भी फिनिश भी हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इस फैक्ट्री वेस्ट को पहले ट्रीट करना चाहिए। कैसे? हमें उसे बेसिक सब्सटेंसेस के थ्रू न्यूट्रलाइज कर देना चाहिए। दैट्स वाई इट शुड बी ट्रीटेड विद बेसिक सब्सटेंसेस टू न्यूट्रलाइज द एसिड present in factory waste. That means untreated जो factory waste है उसको पहले neutralize करें with the help of some basic substances। जब वो neutralize हो जाएं तब उन्हें water bodies के अंदर discharge करें। Is it okay?